जानकारी ले लें। So आज कुछ नए members join किए हैं. So for that I will repeat few of the things again. So let me clear. So why are we here? हम लोग ये monthly एक बार मिलके what are the things we are doing here? The first thing is that our main objective is to know about the Indian dairy industries. Dairy industry में क्या होता है? What are the how the dairy industry has been grown since last 20-25 years? Because my journey is almost 25 years in this field, so I can share those knowledge, I can share those experience with you, and you have many of you also spent few years in this industry, so you can also share your knowledge and experience. So that it will be a sharing of knowledge on Indian dairy industry. That is what I say, the share knowledge experience among ourselves. We are here to encourage the young generation to opt this as a career. बहुत सारे लोग आज के डेट में मैं ऐसे देख रहा हूँ कि पीपल्स आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड टू एंटर इनटू दिस फील्ड, क्योंकि मिल्क बिजनेस में, मिल्क इंडस्ट्रीज में sincerity is most important thing. You will have to attend the complaint by the customer as soon as possible, क्योंकि मिल्क को होल्ड करके रखना it is not possible. So ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काफी सारे रिमोट एरिया में काम करना पड़ता है. So आजकल के जो यंग जनरेशन है, they are not preferring to travel to those localities, those remote areas to serve the farmers, to serve the collection centers. So we have to encourage them. What are the other benefits you are getting? How the career is exciting, so that you can get lot of manpower force into this field. Last and not the least is to provide training to the all aspirant for better practices. So whatever I gained in this last 27 years, मेरा main मकसद यही है कि can I share those knowledge with the person in form of training, in form of coaching, in form of personal mentoring, so that somebody will get help, somebody will get some sorts of benefit out of this. So these are the main. And lastly, to build a community of much needed workforce for this industry. This industry को चलाने के लिए बहुत बड़ा workforce requirement है, because the raw material itself is spread across each part of the country. ऐसा नहीं कि एक जगह में बैठ के, जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं लेना है, पीपल फोकस ऑन पंजाब एंड यूपी, वहां से गेहूं मिल जाता है जो कि पूरा इंडिया को सप्लाई कर सकता है. ऑनियन लेना है, पीपल go to Nasik, Maharashtra and adjacent area so that they can get onion for the rest of the country. But milk ऐसा नहीं है. Milk is spreading across the country. Milk production is spreading across the country. That is the reason that you need a very large workforce to manage or to handle this industry. So these are the basic outcome, basic things we have to keep in mind while we are meeting in this call every month. This is what about me. Most of the people knows me. So those who are new, just I am briefing few points in. I am Prakash Sir, is a mechanical engineer. I am a corporate trainer and also a digital marketer. I started my professional career in 1989 as lecturer in a diploma school, and I started my industrial career as a service engineer, like most of you are here, with Alpha Level Agri India Limited in 1995. Alpha Level Agri is, or the Alpha Level जो group है, that is world #1 dairy industry, dairy equipment supplier, equipment manufacturer. Now I'm working as the head of product and technology at Promethean Power System, where we are into the production of milk chilling units that is required for village level milk collection centers. I've traveled almost all states except Jammu and Kashmir during my past 27 years of association with dairy industry. I've conducted many training on CMP, that is clean meat production, in major dairies across India as well as in Bangladesh. I'm a life member of Institute of Engineers, Indian Society of Technical Education. I'm a certified corporate trainer. I'm a digital marketing freelancer, and also I do some dairy consultancy work.
I firmly believe that learning is a lifelong process. So keep learning, keep upgrading yourself at each point of your life to take your journey furthermore and growth your career. This is all about me. Now let us come see some facts about the dairy industries. So it is very difficult to elaborate all the points in the dairy regarding dairy industry is a very small short span of time. तो जो मेजर फैक्ट्स है इंडियन डायरी इंडस्ट्रीज के ऊपर, so there are 5-6 points I have noted which we should know just to have some idea कि ये इंडस्ट्री कितना बड़ा है. India has the largest dairy herd, over 300 million bovine. 300 million. So can you imagine what is the number actually in terms of only number? 1 million is equal to 10 lakhs. So it is 300 into 10, 3000 lakhs of animals are there in India. India is producing 187 million tons of milk per annum. This is the data from 2018-19. But if I even look at the data on 2019-20, this 1920 yes, this 187 has gone up to 198.4 million tons. So you just add 90 after this, that will give you the kg of milk that is being produced in India. It's a huge number. I cannot say in crores, all those things. अरबों में जाएगा. India's contribution is 22% of the global milk production, which is 843 million tons. Total जो इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन होता है, अगर मैं वर्ल्ड के हिसाब से कंपेयर करूं, India is alone is producing 22% of milk. That's why it is called India is the largest milk producers in the world. Indian dairy industry is a source of livelihood for 80 million rural households. 80 million means 80 into 10, 8,000 million rural household को means of living देता है this dairy industry. You imagine how much people you are serving if you are working under this industry. Whatever milk is produced in India, एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि okay, we are producing 187 million tons of milk. ये सारे मिल्क हम लोग खुद कंज्यूम करते हैं या किसी को देते हैं. Out of this 187 million tons of milk, 55% is the surplus milk. Surplus in the sense, long back ago, now the mindset has been changed on the farmers group. पहले क्या होता था, लोग घर में 1-2 गाय रखते थे. So whatever milk they collect, they actually keep animals for their own upbringing, for their own consumption. 2 liter, 4 liter, 5 liter जो भी दूध आया, they consume in the house. अगर कुछ surplus होता है, then they sold it to neighbor or sold it to other people. But इसी हिसाब से जितना अपना कंजप्शन हो जाता है, अपना घर में जितना यूज होने के बाद जो एक्स्ट्रा सरप्लस मिल्क घर में है आज के डेट में, दैट इज ऑलमोस्ट 55% दूध मार्केट में आता है सेल होने के लिए. Sorry. Out of this 55% of milk, around 22 to 24% of milk is actually going to organized sector. Organized sector किसको बोलते हैं? The dairy processing plants, जो आपको घर में liquid milk in form of pouch आता है, the dairies who are into production of milk, liquid milk as well as milk products like cheese, butter, curd, yogurt, ice cream. So all together these are called as organized sector. And balance of the milk that is going to your local doodh wala, local vendors, mithai shops, and chai wala. So those are taking almost another 30% of milk, surplus milk is consumed by these people. This 22% actually before 5-6 years it was 17%. Now it has become up to 22%. So the rate of growth is the growing market of organized sector is growing slowly. So Government of India is launching lot of projects, lot of initiations they are taking to ensure that more milk comes to the organized sector so that they can have a very good control over the quality of milk.
एंड एंड यूजर्स जो है, जैसे हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं इसको, हम लोग जैसा है, तो हम लोग को अच्छा क्वालिटी का मिल्क मिल जाए. सो दिस इज द मेन फैक्ट्स, few facts of Indian dairy industry. If I'll see the milk production in India in last 5 years, in 2015-16, starting from 155.5 millions, in 2019-20, it has reached up to 198.4 million ton. So you can see that there is a sharp growth in the milk production. ऐसा नहीं कि इस साल ज्यादा हो गया, अगले साल कम हो गया, लाइक अदर क्रॉप्स, ऐसा नहीं है इसमें. इंडियन डायरी में क्या होता है, मिल्क बिजनेस में इट इज गिविंग ए कांस्टेंट ग्रोथ. बाकी एग्रीकल्चर बिजनेस में देयर आर अप्स एंड डाउन्स बिकॉज द एग्रीकल्चर इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द मानसून और द एम्बिएंट कंडीशन. आज इस साल बारिश नहीं हुआ, इस साल फ्लड आ गया, देयर आर मेनी नेचुरल कैलेमिटीज. Of course, dairy industry is also hurt by these natural calamities, but not to that extent. तो इसीलिए मिल्क का जो प्रोडक्शन हुआ, that is constantly growing, 155.5 to 198.5. So you see, 5 years में almost at the rate of 6%, 5 to 6.5% प्रोडक्शन रेट में इंक्रीज हुआ है. एंड आगे चल के प्रोजेक्शन ऐसा है कि अगले 5 साल में दिस विल अगेन go by same ratio of 4 to 5%, 5 to 5.5% each year. जैसे भी ये मिल्क का प्रोडक्शन जितना भी बढ़ता है, now per capita availability, per capita in the sense per head कितना मिल्क मिलता है हमको खाने हमारे कंजप्शन के लिए, that is also growing as per the milk production growth. It is starting from 337 grams in 2015-16. Now we have reached up to 407 grams of milk per head in 2019-20. Almost we are reaching towards the half liter of milk every person, every Indian is consuming. Maybe I am not consuming half liter, I am consuming 250 grams. Somebody is consuming 750 grams. By and large, if you take an average 407 grams of milk is milk in form of liquid milk or maybe in form of what you call milk products, various milk products. It is being consumed by the Indian peoples. Now let us see how this industry connects. So this is where the thought process comes, the thought comes to your mind, where I can fit myself in this business. As you know, milk is being produced in the rural areas. You cannot find large farms, small animal herds in township area, in the city. As such, अभी तो सिटी में गाय भैंस रखना भी बैन हो चुका है. So आपको सारे दूध कहाँ मिलता है? Every animals farms are built in the rural area only. So एक तो rural area में production होता है, बट कंजम्पशन कहाँ होता है? कंज्यूमर्स आर सिटिंग इन सिटी. गांव के लोगों को दूध की इतना रिक्वायरमेंट नहीं रहता है क्योंकि उनके पास खुद का गाय है. दे आर देयर ओन एनिमल्स, सो व्हाटएवर मिल्क दे आर गेटिंग फ्रॉम देयर एनिमल्स दे कंज्यूम, दे कीप इट फॉर देयर कंजम्पशन. सरप्लस होता है तो बाकी लोग को बेचते हैं. तो प्रोडक्शन सारे रूरल एरिया में होता है और कंजम्पशन मोस्टली ऑन दी अर्बन एरिया और सिटीज. So how this has to be connected, because अगर मेरा प्रोडक्शन एक जगह में होता है और कंजप्शन दूसरे जगह में होता है तो there should be a smooth path to connect these two groups of people so that the industry can move forward and industry can be built up. So I need a bridge between these two, the milk production side and the milk consumption side. So who is there to make the bridge? This bridge is actually taken care by the processing plants, जो कि हम नॉर्मली बोलते हैं डायरीज. ये डायरी क्या करता है? दिस फॉर्म्स द ब्रिज बिटवीन द प्रोडक्शन एरिया एंड द कंजप्शन एरिया. इनका जिम्मेदारी क्या रहता है? दे हैव टू कलेक्ट मिल्क फ्रॉम द रूरल बेल्ट, प्रोसेस इट, पैक इट एंड सोल्ड इट टू द अर्बन कंज्यूमर्स. सो देयर कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ VLCC or the village level collection center. So ये dairy processing plant also not directly connected to the
farmers. Individual farmer के साथ अगर dairy processing plant connect करेगा, then it will be very difficult for them to manage such a number of farmers. अभी इंडिया में if you see that average milk collection per household कितना होता है, हार्डली एवरेज अगर आप करेंगे तो 8 to 10 लीटर्स ऑफ सरप्लस मिल्क और 8 से 10 लीटर मिल्क एक फार्मर लेके आता है कलेक्शन सेंटर पे. So suppose a dairy plant has to process 1 lakh liter of milk. So how many farmers he has to connect? Is it possible for him to connect all these farmers individually? No. So in between these two, in between the dairy plant and the milk production area, the main function of another center, another organization comes, that is the VLCC or village level collection center, which connects a link between the farmer and the processing plant. Now, since milk is collected through the VLCC and it is coming to the processing plant, then processing plant makes that bridge further, sub-bridge, another sub-bridge to the consumers. So now ultimately what happens? The smooth bridge, that is what is required to sold or to carry this product, produced milk from the rural area to the urban area, that is being carried out by this process. In between बहुत सारे छोटे छोटे चीज और भी होता है. Maybe number of VLCCs connected to a very milk chilling center, then milk chilling center is connected to processing plant. वो काफी सारे होते हैं. Since हम लोग पूरा individual part पे आज नहीं जा रहे हैं, so basically my focus is today only on village level collection centers. So I just show the bridge की farmers के बीच में, farmer और consumer के बीच में. These are the two important things. एक तो collection center हो गया, एक तो dairy processor हो गया, dairy plant हो, processing plant हो गया. दो ये bridge formation करता है. So now let us come and focus on the VLCC part. So what is then VLCC? Village level collection center क्या होता है? एक village में हो सकता है एक विलेज हो सकता है 2-3 एडजेसेंट विलेज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सेंटर, जिस सेंटर से मिल्क कलेक्ट होता है. सारे फार्मर्स आके वहीं पे दूध देते हैं. दैट इज सिंपली कॉल्ड एज VLCC और विलेज लेवल कलेक्शन सेंटर. अपार्ट फ्रॉम कलेक्शन, उसका कुछ मेजर एक्टिविटीज हैज टू बी कैरिड आउट इन दैट कलेक्शन सेंटर सो दैट द ऑपरेशन विल बी रिमेन स्मूथ. क्या क्या एक्टिविटीज होता है वहां पे? Milk collection, of course, is the major activity. First and foremost activity is the milk collection. Second is the input services. दो काम सेंटर करता है. एक तो मिल्क कलेक्शन करता है फ्रॉम द फार्मर एंड इनपुट सर्विस जो डायरी प्रोसेसर से, डायरी प्लांट से मिलता है, दैट ऑल्सो ही प्रोवाइड्स रिटर्न बैक टू द फार्मर. मिल्क कलेक्शन में उनका क्या क्या रोल्स रहता है? बेसिकली मिल्क वेइंग एंड टेस्टिंग. मैं मिल्क लेके आया तो मुझे वहां क्या करना है? मुझे पहले वे करना है, उसका क्वांटिटी मेजरमेंट करना है, एंड टेस्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ क्वालिटी, दैट इज बीइंग कैरिड आउट बाय द VLCC. मिल्क कूलिंग एंड स्टोरिंग. इफ द मिल्क हैज टू बी स्टोर्ड, इट हैज टू बी कूल्ड ऑब्वियसली. हम अगले साइड में देखेंगे व्हाई कूलिंग इज इंपॉर्टेंट. मिल्क कूलिंग और स्टोरिंग भी एक VLCC का ही जिम्मेदारी होता है. थर्ड इंपॉर्टेंट इज फार्मर्स पेमेंट. दैट इज ऑल्सो द मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिल्क कलेक्शन सेंटर. क्योंकि फार्मर कभी ये नहीं इसको पता नहीं कि कौन सा डायरी, मे बी डायरी का नाम उसको पता है, बट हु इज द पर्सन सिटिंग इन द डायरी हु इज रेस्पॉन्सिबल टू मेक पेमेंट फॉर द फार्मर. तो लेकिन कलेक्शन सेंटर का एजेंट जो है, कलेक्शन सेंटर का इंचार्ज जो है, ही नोज द इंडिविजुअल फार्मर्स पर्सनली, क्योंकि उसी का विलेज का ही है या उसी का एडजेसेंट विलेज का है और वो रोज उसके साथ मिलता है. सो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि मैं इनसे दूध कलेक्ट किया, मैं डायरी को दे दिया, बट it is also my responsibility that I should ensure dairy payment release kiya or it is reached to the farmer. So these are the three important job has to be carried out by any VLCC in charge for smooth running of the collection center. इसमें बहुत सारे लोग मैं लास्ट मंथ एक छोटा सा सर्वे किया था. I found lot of challenges people facing for establishing a VLCC. Like there are few questions like this. How a farmer will trust you? वो आपको क्यों दूध देगा? What should be the rate of the milk? How to check the adulteration in the milk?
सो ये सारे जो होता है ना, इसको कोई अगर छोटे छोटे चीजों को जो भी प्रॉब्लम्स आता है, जो भी काम होता है VLCC में, इफ आई क्लब ऑल टुगेदर, तो ये सब इन 3 कैटेगरी के अंदर आता है. अगर कोई बोलता है कि मेरा अडल्ट्रेशन होता है दैट इज कैन बी डिटेक्टेड बाय टेस्टिंग ओनली. अब मेरा टेस्ट करोगे तो पता चलेगा कि अडल्ट्रेशन है, अडल्ट्रेशन नहीं है. क्वांटिटी वेरिएशन है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है फार्मर और VLCC इंचार्ज के बीच में, या फार्मर VLCC इंचार्ज और डायरी के बीच में. ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस मैं एक्चुअली क्या ले रहा हूँ और क्या रिकॉर्ड आपको शो कर रहा हूँ, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा तो ट्रस्ट कहाँ बिल्ड होगा. सो बिल्डिंग ट्रस्ट इज समथिंग डिफरेंट. आप अगर ये तीनों चीजों में और इसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स है उसके ऊपर 100% फोकस करोगे, 100% फोकस करोगे, यू विल बी द बेस्ट इंचार्ज ऑफ दैट VLCC. सो दीज आर द बिल कलेक्शन के लिए आपको ये 3 कैटेगरीज के ऊपर ही काम करना पड़ेगा. सिमिलरली इनपुट सर्विसेज क्या है? यू हैव टू प्रोवाइड सर्विसेज लाइक फीड एंड फॉडर्स. आजकल हर डायरी अपना फीड प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह बनाते हैं. They are providing subsidized feed and fodder to the farmers, just to attract the farmer, just to ensure that the farmer give proper diet to their animals so that the quality of milk will be better. तो feed and fodder आपको डायरी से लेके फार्मर्स को देना है. इनपुट सर्विस, दैट इज कॉल्ड इनपुट सर्विस. इसमें आपको फायदा है, ऐसा नहीं कि डायरी इज नॉट आस्किंग यू टू डू दिस सर्विसेज फ्रीली. आपको इसमें भी कुछ कमीशन आएगा, कुछ पैसा मिलेगा इसके लिए, बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर द डायरी एंड फॉर द फार्मर. और फार्मर के साथ आपका ट्रस्ट भी बिल्ट होता है इसके लिए. द सेकेंड इनपुट सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द वेटनरी सर्विसेज. अभी गांव में वेटनरी सर्विसेज प्रोवाइड करना इट्स ए चैलेंज, बिकॉज यू कैनॉट फाइंड मेडिसिन इन मेनी प्लेसेस, यू कैनॉट फाइंड गुड डॉक्टर्स इन द मेनी प्लेसेस. सो अगर डॉक्टर का एक नेटवर्क है, अगर डॉक्टर का कुछ एक ऐसा एक लिंक है विच इज सपोर्टेड बाय द डायरी, एंड सेंटर इंचार्ज ये लुकआउट रहता है कि हाउ दिस सर्विस इज provided to the farmer for their benefits. That also build trust, that also build transparency on the between the VLCC incharge and the farmer. The third important service is meeting and training. That is also very very important things. आप milk collection कर रहे हो, you are a milk center in charge. It does not mean that you are a officer in that area. आपको फार्मर के साथ मिलना है, आपको फार्मर के साथ मीटिंग करना है, मे बी monthly once, maybe 15 days once in a 15 days, to understand their problems, to listen their issues, what problems they are facing. Is the farmers is required any training to develop, upgrade their knowledge, upgrade their skill for rearing the animals. वो अपना गाय को भैंस को कैसे देखभाल करना चाहिए, क्या कौन सा वैक्सीन देना चाहिए, कब के टाइम पे, मिल्क कलेक्शन में क्या क्या एडवांटेज उसको मिलता है. ये फार्मर को जब तक आप किसी को उसका एडवांटेज नहीं बोलोगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि हाँ भाई मैं तो दूध दे रहा हूँ, पैसा मिल रहा है मुझे, बाकी तो क्या क्या मिलता है मुझे क्या पता है. सो मीटिंग एंड ट्रेनिंग, ये 2 फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारे लोग इसमें लैग करते हैं. मैं मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये मीटिंग एंड ट्रेनिंग पार्ट को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देता है, बट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इनपुट सर्विस. लाइक फीड एंड फॉडर, वेटनरी सर्विसेज, मीटिंग एंड ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेंटर इंचार्ज टू एंश्योर दैट ही कंडक्ट्स रेगुलर मीटिंग्स. ठीक है, 4 आदमी आए, 5 फार्मर्स आए, नो प्रॉब्लम. द फार्मर्स हु आर कमिंग टू अटेंड योर मीटिंग, दे आर सीरियस. आज हो सकता है 4 आदमी आएंगे, कल 10 आएंगे, परसों 50 आएंगे, हो सकता है कि पूरा फार्मर भी आप एक दिन आपके मीटिंग अटेंड करेंगे. तो ये मीटिंग में क्या होता है, एक तो रिलेशन डेवलपमेंट होता है, सेकंड यू कम टू नो कि व्हाट आर द इश्यूज लाइंग विद द फार्मर्स, एंड उसको लेके आप डायरी से बात करके, डायरी से डिस्कस करके आप कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, कुछ लिफलेट्स, कुछ पोस्टर्स ये अगर दे सकते हो, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द फार्मर्स. सो मीटिंग एंड ट्रेनिंग इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट इनपुट सर्विस which I personally feel is lacking in today's scenario. So we should give emphasis on this. So these are the 2 major activities I have underlined, I have taken from for smooth running of a VLCC. Now we'll go for individual things. Now what is the major requisites? These are the activities. Okay, एक activities करने के लिए you need a place. आपको कुछ तो चाहिए, आप तो ऐसे खड़ा होकर एक्टिविटीज नहीं कर सकते. सो यू नीड ए, व्हाट आर द रिक्विजिट्स, क्या क्या जरूरत चीजें हैं व्हिच शुड बी, मस्ट बी देयर इन द VLCC. द फर्स्ट रिक्विजिट इज ए बिल्डिंग.
आपको एक मकान चाहिए टू स्टार्ट ए वीएलसीसी। आपको एक तो बड़ा मकान हो या एकदम स्ट्रक्चर मकान हो या तो एक कैसे भी मकान हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के जैसे यू नीड ए बिल्डिंग, यू नीड इक्विपमेंट्स। बिना इक्विपमेंट यू कैनॉट डू टेस्टिंग, यू कैनॉट वेट द मिल, यू कैनॉट स्टोर इट, यू कैनॉट पुल इट। सो आपको इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहता है। एंड थर्ड थिंग इज द इम्पोर्टेंट इज द मैन पावर। So maybe आपका VLCC में there are not number of manpower आपको नहीं चाहिए, but at least the person who is handling the VLCC, the center in charge, that is the most important manpower for that VLCC. अगर आपका खुद का है then it's fine. अगर आप किसी को ले रहे हो to work for you as a worker, as a employee, then you have to see certain things for that manpower, and that manpower is most important because he is the person who is day to day activities में वो फार्मर के साथ उनका ही डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट रहता है। सो दीज आर द थ्री मेजर रिक्विजिशन और रिक्विजाइट्स फॉर एनी VLCC। अपार्ट फ्रॉम थिंग बहुत सारे चीज छोटे मोटे चीज रहता है, बट ऑल दिस लिस्ट अगर आप मैं किस दिन बैठ के पूरा सारा लिस्ट आउट करूंगा, then this three can be categorized under these three main headings. So we'll go one by one. Building. So the first and most important thing is the location of the building. It is always preferable to have the building at one end of the village. इसमें काफी arguments हैं. People say that if I'll make the VLCC at one end, तो other end of the villagers are not coming to pour milk, क्योंकि उनको उतना दूर आना नहीं है. Second हो गया, कभी कभी लोग बोलते हैं कि it should be under centrally, एक गांव के बीच में कहीं होना चाहिए, so that everybody is accessible and nearest to that. Of course, that is a good idea, but my argument is that it should be on the one end, so that आप तो मिल कलेक्ट किया, मिल तो फिर फर्दर वहां तो नहीं रहने वाला है ना. It has to be transported to some other place. So another big vehicle or larger vehicle will come to pick up these mills. So अगर मेरा गांव के सेंटर में सेंटर है, मेरा कलेक्शन सेंटर है, तो वहां तक व्हीकल पहुंच पाएगा. Whether it will be convenient for the other peoples, क्योंकि गांव के अंदर क्या होता है, रोड नैरो रहता है. एक गाड़ी खड़ा हो गया तो बाकी लोगों को आने जाने में परेशानी हो गया. फिर जो आदमी दूध नहीं डाल देते हैं वहां पे, the farmers were not associated with this VLC, they started arguing, गाड़ी इतना दूर खड़ा रहता है, ये हो. And if it is connected to a main road, जैसे गांव का एंड रोड एंड पॉइंट पे आ गया, which is connected to the main road side, then it is preferably to select such a location. ऐसा नहीं कि it's a hard and fast rule कि okay all the VLCCs should be on that condition. नहीं, अगर नहीं मिलता है fine, you can take it at any point, any place in the village, but preferably ये होना चाहिए. The second is the size. What should be the minimum size of the milk collection center? अगर आपके पास cooling equipment के साथ करना है, then it is not recommended. Nowhere it is written, neither NDDB nor anyone has specified that this should be the minimum requirement of area of the building. But based on my experience, based on the sites I visited, and एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए एटलीस्ट यू नीड 0.15 to 0.2 स्क्वायर फीट पर लीटर ऑफ मिल्क. जैसे एक 2000 लीटर का कलेक्शन सेंटर है, सो एटलीस्ट 300 to 400 स्क्वायर फीट के बीच में आपको रूम मिल गया, देन इट्स वेरी नाइस. एक 1000 लीटर का कलेक्शन सेंटर है, सो यू नीड अ रूम ऑफ 150 to 200 स्क्वायर फीट. सिंपल, मल्टीप्लाइड बाय थाउजेंड लीटर्स ऑफ मिल्क विथ दिस 0.5 और 0.25. अभी हाँ, ये सवाल फिर क्वेश्चन से आता है कि इफ आई गेट ए रूम ऑफ लेट्स से मेरा रिक्वायरमेंट इज 15 by 10 सॉरी 150 स्क्वायर फीट, तो मुझे एक ऐसा रूम मिला जहां 15 फीट चौड़ा है और 10 फीट का विड्थ है, तो इट्स ए फैंटास्टिक. 15 by 10 का एक रूम मिला तो आपको स्पेसिंग अच्छा मिल जाएगा. अगर आपको 5 फीट बाई 50 फीट का रूम मिला तो, या 30 फीट का रूम मिला तो कुछ मतलब नहीं बनता है. वो 30 फीट का आपको कुछ यूटिलिटी नहीं है और 5 फीट में आप कुछ कर नहीं सकते. आइडियली नॉर्मली जैसे रूम रहता है 10 by 10 हो गया, या एक तो स्क्वायर हो गया, या थोड़ा रेक्टेंगल 2:3 रेशियो में. अगर विड्थ मेरा 2 times है तो लेंथ मेरा 3 times होना चाहिए. इस हिसाब से दिस इज द bare, not bare minimum I can say, this is the ideal
size of the room should be there for the any VLCC. The third requirement is the power source. The most important thing, you preferably select the building if it is at the nearer to the main road. It should be nearer to the power supply source also. ऐसा नहीं कि मेरा बिल्डिंग यहाँ पे है और वहां से मुझे कनेक्शन लाने के लिए आई एम यूजिंग 100 मीटर्स ऑफ वायर. सो क्या होता है, वो इतना लंबा वायर यूज करोगे, देयर विल बी वोल्टेज ड्रॉप, देयर विल बी इश्यूज इन द सप्लाई, देयर विल बी इश्यू इन द रनिंग ऑफ द इक्विपमेंट्स. सो जितना सप्लाई पोल, सप्लाई करंट सप्लाई पोल से जितना नजदीक रहेगा उतना अच्छा है. इफ इट इज नियरर टू द ट्रांसफार्मर देन द बेस्ट. सो दीज आर दी थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होगा. अल्टीमेटली क्या होगा, इफ यू आर गोइंग टू ए हायर लेंथ ऑफ केबल, और आपको एक हायर साइज पे जाना पड़ता है. अगर मुझे 6 स्क्वायर mm केबल पे काम हो जाना चाहिए, अगर मुझे मान लीजिए कि 100 मीटर दूर से मुझे पावर कनेक्शन मिलता है, तो मुझे 6 में काम नहीं चलेगा. आई हैव टू स्पेंड मोर मनी ऑन द केबल and I have to go for 10 square mm or maybe 16 square mm to compensate that voltage drop. थोड़ा टेक्निकल है उसमें, तो इसलिए प्रिफरेबली जितना नजदीक हुआ इतना अच्छा है. Fourth is the most important factor, that is drainage. Since you are handling water, milk, you will have to handle lot of water for cleaning of the equipment, for cleaning of the टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, फॉर क्लीनिंग ऑफ द बिल्डिंग फ्लोर एरिया, क्योंकि दूध गिरेगा, मक्खी आएगी, सो यू हैव टू मेक इट क्लीन एंड हाइजीन. तो इसके लिए यू नीड ए बेटर ड्रेनेज सिस्टम. वाटर डिस्पोजल आपका अच्छा होना चाहिए. इट इज नॉट दैट कि आपका एक मकान बना दिया और सारा पानी जो क्या कि वो सामने ही लॉगिंग होता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है, तो फिर क्या होगा, वहां पे जितना भी कीड़े मकोड़े सब पैदा होंगे एंड दैट विल अफेक्ट टू दी क्वालिटी ऑफ मिल्क. को मक्खी जाएंगे, मच्छर जाके गिरेंगे मिल्क में, वो ठीक नहीं है. इसलिए आपको वाटर डिस्पोजल का प्रोविजन करना चाहिए, या तो देखना चाहिए कि मैं अगर इतना सारा पानी मुझे यहाँ से निकल रहा है तो मैं इसको कैसे डिस्पोज करूँ. यहाँ से सोकपीट बनाना है या छोटा ही सोकपीट बना के मैं कहीं निकाल सकता हूँ क्या, या मेन ड्रेन से कनेक्ट कर दूं सो दैट वो ड्रेन पे चला जाएगा. एंड सेकेंड थिंग इज देयर शुड नॉट बी वाटर लॉगिंग अराउंड द बिल्डिंग. नॉर्मली क्या होता है, गांव में बिल्डिंग थोड़ा अगर आइसोलेट एरिया में है तो वो खेती के बीच में हो जाता है. तो क्या होता है, जैसे बारिश का मौसम में वो चारों तरफ पानी डिपोजिट हो जाता है, वाटर लॉगिंग होता है. वाटर लॉगिंग होने से क्या होगा, एक तो दिक्कत होगा कि देयर विल बी इंसेक्ट्स वर्ण होंगे. इंसेक्ट्स आएंगे तो दूध में जाएंगे, चांसेस आर देयर. आपका बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, दूध में गिरेंगे, दैट विल डिटोरेट द क्वालिटी ऑफ मिल्क. सेकेंड हो गया, लोगों को आने जाने में भी दिक्कत होगा. अगर आपका बीएलसीसी के सामने ही इतना पानी भरा हुआ है तो लोग कैसे आएंगे जाएंगे बारिश के टाइम पे. इट इज डिफिकल्ट. आपका मिल्क कलेक्शन व्हीकल भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा. तो ड्रेनेज फॉर डिस्पोजल ऑफ वाटर एज वेल एज वाटर लॉगिंग का इशू को भी आपको देख के बिल्डिंग सिलेक्ट करना चाहिए. थर्ड इज अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर. जो भी नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर रहता है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पोर्टेबल वाटर फॉर रूटीन वर्क. आपको सारा क्लीनिंग के लिए लगभग 1000 लीटर का डायरी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर मैं जाऊंगा तो यू कैन नॉट इमेजिन दैट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी रिक्वायरिंग. इट इज एक्चुअली 1:3. आप जितना मिल्क हैंडल कर रहे हो उसको 3 टाइम्स वाटर चाहिए आपको. 1000 लीटर कर रहे हो तो 3000 लीटर का पानी आपको वहां क्लीनिंग, प्रॉपर क्लीनिंग के लिए चाहिए. फॉरगेट अबाउट दैट. एटलीस्ट आपको 1000 लीटर हैंडल कर रहे हो दूध तो 1000 लीटर पानी आपको तो दिन में चाहिए फॉर क्लीनिंग ऑफ all the utensils, milk tanks, floor area and the testing equipment. That also you have to see. आपका बोरिंग है या कहीं से सप्लाई वाटर आपको अवेलेबल है, कैसे आपको, you have to look for that also. The fourth thing is the environment. Environment is very important. It should be dust free. ऐसा नहीं कि आप एक जगह ऐसा जगह में लिया where is nearest में एकदम बगल में आपका एक राइस मिल है. राइस मिल में क्या होता है, राइस मिल में जो क्रॉसर चलता है तो काफी डस्ट पार्टिकल्स निकलता है वहां से, वो एटमॉस्फेयर में पूरा जाता है, फैलता है और इट विल आल्सो अफेक्ट योर, वो दूध में भी आके गिरेगा और बिल्डिंग में भी डस्ट ही डस्ट रहेगा. एंड नजदीक में कहीं ऐसा काम हो रहा है कि ईटे का ब्रिक्स का भट्टी है तो वहां से भी डस्ट आएगा. सो थोड़ा वो सब चीजें ध्यान में रखना चाहिए कि भाई
ज्यादा डस्ट नहीं आना चाहिए, डस्ट फ्री होना चाहिए. इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड. वेंटिलेटेड इन द सेंस एटलीस्ट क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए. एक तरफ से हवा जा रहा है, ऐसा नहीं कि आपका बिल्डिंग का तीनों तरफ एकदम क्लोज है, एडजस्टेंट बिल्डिंग ऐसे सट के लगा हुआ है कि वहां से कोई वेंटिलेशन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. लाइट नहीं गिर रहा है, अंधेरा अंधेरा रहता है, क्योंकि सामने से बहुत सारा कुछ ऐसा, मतलब ऐसे जगह में लोकेट है कि वहां डायरेक्ट सनलाइट कभी आता नहीं है. सुबह आते आते 11 बज जाता है, 11 फिर सन ऊपर चला जाता है तो बिल्डिंग के अंदर नहीं आता है, फिर शाम को भी नहीं आता है क्योंकि पीछे और कुछ रहेगा. सो ये 3-4 चीजें, डस्ट फ्री, वेल वेंटिलेटेड, सनलाइट. So these are the main things you have to keep in your mind while selecting a VLCC building. Then the most important is that you should select a building in such a place that all social segments should access that village, that building. Okay? Don't take it in other way. There are places, आपका VLCC एक टेम्पल के क्या होता है, उसका बाउंड्री के अंदर है, मतलब अटैच होके रखा है. So if somebody of other religion, somebody from other caste is not allowed to pour milk, or the person who is of different caste or different religion is feeling reluctant to go to that place. ये मैं देखा हूं लाइफ में, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ. इट्स ए वेरी हार्ड ट्रूथ, लेकिन आज भी है हमारे बीचों में, हमारे सोसाइटीज में लोग इसको मानते हैं, स्पेशली रूरल एरिया में थोड़ा ज्यादा इसको ध्यान देते हैं. सो ये बिल्डिंग ऐसे जगह में होना चाहिए कि जैसे कि भाई हाँ कोई अदर रिलीजन का आदमी आया तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए. अदर कास्ट का, जैसे हम लोग बोलते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, लोअर, ये वो सब करके है, यार वो उनका वो ये कास्ट का है, इधर नहीं आना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए. एवरीबॉडी इज फ्री टू एक्सेस. अदरवाइज क्या होगा, दैट विल अफेक्ट योर बिजनेस. अगर एक गांव में 10 फैमिली ऐसा आ गए जिसको इस एरिया में एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा, फिर उन 10 आदमी का, 10 फार्मर का जो मिल्क है वो आपके पास नहीं आएगा. So these are the facts, these are the points should be kept in mind while you select a VLCC building. Actually इसके लिए एक proper leaflet framework है, या जिसको हम लोग बोलते हैं कि सर्वे फॉर्म. वो सर्वे फॉर्म के अंदर हम लोग टिक करते हैं कि हाँ भाई लोकेशन ये है, साइज ये ठीक है, ये ओके, दिस बिल्डिंग इज सुटेबल फॉर द VLCC. This is an ideal building. I am showing for a 2000 liter plant. This is size of 20 by 15. 20 feet is the length and 15 feet is the width. So this is the left side में आप जो देख रहे हो, that is the BMC. Right side, your rowing machine is there. Then milk testing area is there, and I have kept a small store to keep the maybe feeds हो गया, medicines हो गया, cleaning agents हो गया, कुछ extra testing equipment है जो मैं आप वहां में safely रख सकता हूँ. And since it is the weighing machine and the testing area is nearer to the entrance, nearer to the rolling shutter, so farmers are not allowed to come inside the building. सब अंदर नहीं आना चाहिए क्योंकि milk is very sensible. अगर छोटा सा कुछ इधर उधर हुआ, it will affect the life of many people. So इसलिए हम लोग वहीं पे restriction रखते हैं farmer को, and it is very near. So but farmer should access to the, or he should freely see the weighing side and the testing side. उसका result उसको दिखना चाहिए. अगर उसको कैसे संतुष्टि मिलेगा कि हाँ भाई मैं जितना दूध लेके आया था properly हुए हुआ, properly testing हुआ, तो he can see all those things, but he should not be allowed to access the store side हो गया, ये हो गया. And there is the electrical distribution panel which is at the center of the building at to the rear end, जहाँ से आप condenser unit को supply दे सकते हैं, जहाँ से आपने जितना भी connection वगैरह लेना है. So this is basically ideal what you call VLCC building. You can see the windows are there for adjusting hot air from the condensing unit. There are window across the rolling shutter, जो कि आपको क्रॉस वेंटिलेशन के लिए हेल्प करता है. Then these two windows also give sufficient light inside. So this is what is called a ideal VLCC layout. But हर जगह में ऐसा नहीं होता है, because
nobody is going to invest money on the building. लोग क्या करते हैं, जो रेडीमेड बिल्डिंग्स है उसी में ही VLCC बनाना पसंद करते हैं या बनाते भी हैं. बहुत सारे बहुत रेयर ऐसे डायरीज है जो अपना बिल्डिंग वहां बनाता है और या अपना साइज के हिसाब से बिल्डिंग बनवाता है. बट एनीवे, दिस इज व्हाट इज द आइडियल कंडीशन. हम लोग हर टाइम पे एक आइडियल कंडीशन को ध्यान में रख के कुछ करते हैं. थोड़ा प्लस माइनस इधर उधर हुआ, देन यू हैव टू मैनेज. शटर का एरिया थोड़ा छोटा होना हो जाएगा, बट एंश्योर दैट द शटर साइज शुड बी सफिशिएंट सो दैट द इक्विपमेंट कैन एंटर इनटू द रूम. मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि बिल्डिंग अच्छा है, अंदर इंटरनली साइज इज वेरी गुड, इससे भी बड़ा बिल्डिंग है, लेकिन एंट्रेंस इतना नॉर्मल डोर है. नॉर्मल डोर कितना रहता है आपका? 900 mm का रहता है. 900 mm में कोई बीएमसी टैंक अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि बीएमसी टैंक का वेट मिनिमम टू मिनिमम 1.2 1.3 से कम नहीं होता है. 4 4.5 5 फीट तक तो आपको स्पेस चाहिए, कम से कम 6 फीट तो स्पेस चाहिए, एंट्रेंस चाहिए अंदर जाने के लिए. उस टाइम में फिर वो दरवाजा दीवार तोड़ो, मशीन अंदर लेने के बाद फिर वो दीवार बंद करो, ये सब होता है. और स्टार्टिंग से आप अगर देख लेंगे तो दैट विल बी एन गुड थिंग टू वॉच. This is about the building. Now we are coming to the equipment. Equipment को also have separated under 3 categories. The first set of equipment is for weighing and testing of milk. The second set is for cooling and storing, and the third set is miscellaneous items. ये दोनों को छोड़ के और कुछ चीजें लगता है. So weighing and testing के लिए एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स जो भी चाहिए वो आपको लेना पड़ेगा एक कैटेगरी के अंदर. कूलिंग एंड स्टोरिंग अगर आपको नहीं करना है देन यू कैन ओमिट दैट पार्ट. अगर आपको करना है कि आप यू हैव टू कूल द मिल्क एंड स्टोर टिल द व्हीकल कम्स फ्रॉम द डायरी टू पिक अप, देन ये फैसिलिटीज आपको लेना पड़ेगा. एंड मिसलेनियस आइटम कुछ चाहिए टू handle the milk. So let us discuss one by one. Weighing machine, weighing and testing. So this is how a weighing machine looks in a VLCC. This is called as platform type. And आज के डेट पे कोई एनालॉग weighing machine यूज नहीं करता है. Everybody is using electronics weighing scale with RS-232 और 485 पोर्ट. ये RS-232 485 पोर्ट क्या होता है? आजकल क्या हो गया है कि मिल्क टेस्टिंग मोस्ट प्रोबेबली मिल्क डाटा इज कलेक्टेड ऑनलाइन. बहुत सारे डायरी आजकल, क्यों नहीं तो क्या है, हर फार्मर का वो नोट करो फिर उसको मैनुअली लिखो, ये सब बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था और उसमें मैनिपुलेशन भी थोड़ा बहुत होता था. तो आजकल क्या होता है कि लोग डायरेक्टली उसको ऑनलाइन सिस्टम में कर दे, सो दैट व्हेन यू पुट समथिंग ऑन दिस वेइंग मशीन, जो भी वेट आया दैट विल बी रिकॉर्डेड समवेयर. तो इसलिए ये RS-232 और 485 का पोर्ट के साथ ही ये मशीन आता है. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस मशीन्स आर स्पेसिफिकली मेड फॉर मिल्क और VLCC यूज, बिकॉज देयर इज वन टॉगल स्विच. उसमें एक स्विच आता है which by changing the position of switch you can take the quantity, weigh the quantity in terms of kg or in terms of liter. क्योंकि मिल्क में बहुत बड़ा एकदम एक डिफिकल्ट एरिया है कि हम लोग सिंस इट इज लिक्विड हम सारे मेजरमेंट करते हैं लीटर पे. आप भी जो पैकेट खरीदते हो 1/2 लीटर 1 लीटर, जो आप फार्मर लेके आता है बोलता है कि 10 लीटर 5 लीटर 7 लीटर, बट सारा कैलकुलेशंस फॉर पेमेंट, सारा कैलकुलेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, सारा कैलकुलेशन फॉर मिल्क प्रोडक्ट्स, उसमें इंग्रेडिएंट्स, ये सारे क्या होता है, दोज आर बीइंग कैलकुलेटेड ऑन केजी. तो आपको ये थोड़ा ट्रिकी थिंग्स है हाउ टू कंपोनेट और हाउ टू मैनेज दैट केजी लीटर. तो इसलिए हर वेइंग मशीन में एक केजी और लीटर का स्विच आता है. अगर किसी ने केजी में रखना चाहिए तो केजी में नोट करेगा, किसी को लीटर में नोट करना है तो लीटर में नोट करेगा. सो दिस इज व्हाट इज रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल. और इसमें वेरिएंट्स आता है डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट. मे बी 0 to 120 kg आता है, 0 to 200 kg तक आता है. 200 kg आया तो देन यू कैन वे एटलीस्ट 4 कैंस एट ए टाइम, 4 कैन आप एक साथ डाल के वेट कर सकते हो. अगर 0 to 120 आया तो मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 2 कैंस, क्योंकि 2 कैन 40 लीटर हो गया. 3 कैंस आप नहीं डाल सकते क्योंकि मैक्सिमम लिमिट से ऊपर चला जाएगा, बिकॉज द कैन हैज ऑलमोस्ट 6.5 to 7 kg ऑफ वेट.
अगर 2 कैन में डालता हूं तो टोटल कैन के वेट के साथ मिल्क का वेट हो जाएगा 40 प्लस 40 प्लस अनदर 14 केजी 14-15 केजी, तो वो 95 तक पहुंच जाता है, 95-100 तक पहुंच जाता है। तो इसलिए ये 2 रेंज पे आता है डिपेंडिंग अपॉन साइज, वो प्लेटफॉर्म साइज उसी हिसाब से होता है। एंड पीपल प्रीफर इन द सेंस, हमको देखना भी चाहिए कि वी शुड टेक स्टेनलेस स्टील प्लेटफॉर्म सो दैट रस्टिंग का इशू नहीं आएगा इन फ्यूचर में। दिस इज रिगार्डिंग द वेइंग मशीन। देन टेस्टिंग के लिए हमको बेसिकली जो VLCC में टेस्टिंग होता है, वी डू 2-3 टेस्ट। वन इज COB, सेकंड इज फैट एंड SNF, एंड थर्ड इज फॉर अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन रेगुलरली नहीं होता है, हाइपोथेटिकली रैंडमली कभी कभार हम लोग करते हैं। जस्ट अगर किसी को कुछ कोई मिल्क के ऊपर डाउट आया या किसी को कुछ लगा या रैंडमली एक आज इस फार्मर का 2 दिन के बाद उस फार्मर का ऐसा किया, तो सो दैट पीपल विल अवेयर दैट ओके अडल्ट्रेशन टेस्ट इज बीइंग कैरिड आउट इन दिस VLCC, सो दे विल नॉट डू एनी सॉर्ट्स ऑफ थिंग, उसमें वो सब मिलाना का काम नहीं करेंगे। COB ऑफ कोर्स ये हर मिल्क में होना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड फैट एंड SNF ऑल्सो हर फार्मर का ये मिल्क बिफोर टेकिंग इनटू द कलेक्शन बेस ये हो जाना चाहिए। सो व्हाट इज COB? COB is curdling or curdle on boiling, or some people do the alcohol test. ये दोनों भी आप कर सकते हो, कोई भी टेस्ट आप कर सकते हो। आई एम नॉट elaborating this. Curdle on boiling is a simple test. एक हार्डली आपको एक 25 to 30 seconds लगता है टेस्ट करने के लिए, to see that whether the milk acidity level is under control or it is beyond control. नहीं तो क्या होगा, 5 लीटर 4 लीटर दूध के लिए पूरा 2000 लीटर दूध भी फट सकता है। सो डैम वो इशू अवॉइड करने के लिए पीपल कॉर्डल ऑन बॉइलिंग करते हैं, एंड दोज पीपल्स हु आर लिटिल बिट स्ट्रिक्ट ऑन टू द क्वालिटी चेक्स, दे गो फॉर द अल्कोहल टेस्ट, व्हिच इज लिटिल बिट मोर क्लैरिटी, गिव्स मोर क्लैरिटी ऑन the acidity part of the milk. Second is fat and SNF. That is most important, most what you call is a must test for all VLCC, because आज के डेट पे बेस्ड ऑन दिस फैट एंड SNF ओनली वी आर पेइंग टू द फार्मर्स। वो टेस्ट अगर बराबर नहीं हुआ, वो टेस्ट अगर कुछ मैनिपुलेशन उसमें हुआ, देन आइदर farmer will go into loss or the dairy will go into loss. These tests are generally conducted by 2 methods. One is the Garver test, which has actually पहले होता था, आजकल Garver test बहुत कम हो गया, that is being kept for the reference test only. ये थोड़ा manual test होता है उसमें, and it is a time consuming test. And nowadays people are using this very simple instrument called milk analyzer, which is also connected to this RS-232 port, RS-232 और 482 port में हो जाता है। सो ऑनलाइन डाटा आ जाता है और विद इन 10 to 15 सेकेंड्स आपको मिल्क का रिजल्ट आ जाता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैट एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ SNF। बट गॉर्वर टेस्ट में आपको मैन्युअली देखना पड़ता है। वो देखने के टाइम पे इफ यू मेजर, उसमें काफी आर्गुमेंट भी पहले होता था कि somebody will say the fat percentage is 3.1, somebody will say no it is 3.2, 0.1 0.2 में अभी मैं एकदम छोटा सा स्केल देखने वाले लाऊंगा तो वो डिफरेंस पता नहीं चलता है, क्योंकि उसके अंदर जो लिक्विड रहता है वो लिक्विड, कोई बोलता है कि मेनिस्कस का वो ऐसे कर्व शेप में रहता है, कर्व शेप का ऊपर देखना चाहिए, कोई बोलता है नहीं नीचे देखना चाहिए, कोई क्लैरिटी नहीं रहता है, किसने थोड़ा ऊपर हाथ हिला दिया तो ऊपर चला जाता है वो लेवल, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट स्टिल गॉर्वर टेस्ट इज ए मस्ट फॉर ऑल VLCC, क्योंकि आपका एनालाइजर का जो टेस्ट आता है आप कैसे क्रॉस चेक करोगे कि whether the analyzer is giving you the proper result or not। तो इसीलिए गॉर्वर के साथ उसको कंपेयर किया जाता है, कैलिब्रेशन भी उसी हिसाब से होता है, एक्चुअली गॉर्वर के हिसाब से होता है। गॉर्वर टेस्ट करके फैट को निकालते हैं, फैट से SNF निकालते हैं, SNF से फिर आपका उसका कैलिब्रेशन किया जाता है कि हाँ भाई ये टेस्ट के हिसाब से कैलिब्रेट हुआ, मतलब आगे का रिजल्ट सही आएगा। और मे बी मंथली और फोर्टनाइटली 15 दिन में एक बार इसको क्रॉस चेक किया जाता है। थर्ड इट फॉर दी अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन के लिए देयर इज ए किट अवेलेबल बाय NDDB, नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड देता है, और भी बहुत सारे कंपनीज अभी चालू किया है, डेवलप किया है ऑलरेडी। सो देयर आर नंबर ऑफ chemicals available inside that, and for every adulterants there is a different chemicals, like sugar test के लिए ये स्ट्रिप है, आप स्ट्रिप लगाओ तो पता चलेगा हाँ इसमें शुगर है तो कलर चेंज हो जाता है, किसने सॉल्ट डाला है तो सॉल्ट के लिए अलग है, किसने कास्टिक सोडा डाला है तो सोडा के लिए अलग है,
कुछ ने स्टार्च डाला है, जैसे लोग आलू हो गया उसका जूस निकाल के डालते हैं ऐसे बढ़ाने के लिए, ये सब जो होता है ये सब अडल्ट्रेशन यू कैन चेक फ्रॉम द अडल्ट्रेशन किट। लेकिन वो क्या है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। फॉर एवरी फार्मर इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट अडल्ट्रेशन टू एवरी डे फॉर एवरी फार्मर। तो किसी का रैंडमली टेस्ट होता है, और अगर कभी कुछ डाउट आता है तो भी लोग चेक करते हैं। So this is regarding weighing and testing. Now we'll coming to the cooling. So why cooling is important? Cooling actually inhibited bacterial spoilage. जो milk spoil होने का एक ही reason है कि formation of bacteria. Bacteria बढ़ जाता है when the number of bacteria go to certain level, the acidity increase होता है milk में और milk curdle हो जाता है, फट जाता है milk. To minimize milk transport cost, cooling is also essential for storing the milk, because आप स्टोर करोगे तो उसका so that you can collect once in a day instead of twice in a day. आपको दिन में और रात में, सुबह और मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम गाड़ी लेकर आना नहीं पड़ेगा। आप एक बार कभी भी आके आज पर कन्वीनियंट ऑफ द डायरी दे विल लिफ्ट द मिल्क। सो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 50% हो जाता है आपका। इट एक्सटेंड स्टोरेज ऑन द फार्म एंड कलेक्शन सेंटर। जैसे आप इफ यू कीप द मिल्क एट the desired temperature, which is 4 degrees centigrade, in between 4 to 6 degrees centigrade, milk can be stored up to 48 hours. आज सुबह का milk without doing pasteurization, if I'll maintain the temperature from 4 to 6, then this milk can be stored up to 48 hours. अगर आपका सेंटर शुरुआत दिनों में 1000 लीटर का कैपेसिटी होना चाहिए, लेकिन आपका 1000 लीटर नहीं हो रहा है, मॉर्निंग और इवनिंग मिला के आपको नहीं हो रहा है, so you can deliver the milk to the dairy every alternative day. So इसलिए it extend the storage on the farm and the collection center, improve raw milk quality delivered. अगर मैं जैसे मिल्क आया, मिल्क का जो सेल्फ लाइफ ऑफ 4 hours, मिल्किंग के बाद 4 घंटे के अंदर इट शुड बी ब्रॉट इनटू 4 डिग्री सो दैट द ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ द मिल्क विल बी रिमेन सेम। नहीं तो क्या होगा, फिर बैक्टीरिया ग्रोथ होता है उसमें, एंड बैक्टीरिया ग्रोथ वेरी फास्ट, मल्टीपल टाइम होते, 2 से 4, 4 से 8, देन 8 to 16, ऐसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 नहीं होता है, that 2 becomes 4, 4 becomes 8, डबल होके जाता है। So 16, 32, 64, 128 ऐसे बढ़ता है। So that's why आप जितना जल्दी उसको that टेम्परेचर पे लेके आते हो, डिजायर्ड टेम्परेचर में 4 डिग्री में लेके आते हो, that keeps the quality of the milk intact. It increases the profit for the farmer and the dairy industry. प्रॉफिट कैसे करता है फिर? अगर मेरे पास कूलिंग फैसिलिटीज नहीं है, लेट्स से आप अज्यूम करो कि मेरे पास कूलिंग फैसिलिटीज नहीं है, तो मैं सुबह मॉर्निंग 6 o'clock को मिल्क कलेक्ट किया, बाय 7:30 द व्हीकल केम फ्रॉम द डायरी, वो पिक करके लेके गया और रास्ते में कुछ गड़बड़ हुआ, टाइमिंग डिले हो गया, या आने के टाइम कुछ गड़बड़ हुआ, टाइमिंग डिले हो गया, मिल्क जाके जब पहुंचा डायरी में, बाय दैट टाइम द एसिडिटी हैज गॉन अप एंड द क्वालिटी हैज बीन डिटोरिएटेड, ये मिल्क हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं टू मिक्स विद अदर मिल्क। तो क्या होता है उस केसेस में, मिल्क इज रिजेक्टेड हो जाते हैं। मिल्क रिजेक्ट हो गया तो नोबडी विल गेट पेमेंट, नाइदर डायरी विल गेट पेमेंट नॉर द फार्मर विल गेट द पेमेंट। फिर आप बोलोगे कि डायरी को क्या लॉस हो गया, डायरी का तो लॉस है ना, डायरी हैज सेंड द व्हीकल, वो तो व्हीकल का जो कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है टू ब्रिंग, व्हीकल भेजा, वहां से दूध लेके आया, मैन पावर का इस्तेमाल किया, यूटिलाइज व्हीकल ऑल्सो, बट उसको कुछ मिला नहीं, कॉर्डल मिल्क मिला, उसको फेंकना पड़ा मार्केट में। उस फेंकने के लिए ऑल्सो ही हैज टू स्पेंड सम मनी, बिकॉज वो डायरेक्टली दूध ऐसे रास्ते में नहीं फेंक सकता है, he has to process it, he has to put it in the ETP effluent treatment plant, उसको नॉर्मलाइज करके न्यूट्रलाइज करके ही वो करेगा। तो फॉर दैट ही इज आल्सो स्पेंडिंग सम अमाउंट एंड अल्टीमेटली ही इज नॉट पेइंग टू द फार्मर। सो फार्मर के दूध होते हुए भी उसको पैसा नहीं मिला। सो बोथ ऑफ देम आर फेसिंग लॉसेस। हाँ, किसका ज्यादा किसका कम है दैट इज सेपरेट इशू, बट वो दोनों का लॉस होता है। सो दोनों का लॉस हुआ, दैट टू अवॉइड दैट लॉस ऑल्सो कूलिंग इज एसेंशियल। So these are the main reasons why the milk should be cooled and then stored. So if you see the cooling and small scales में, जैसे आपका if your collection is below 400-500 liters, so nowadays as can coolers are available where you can cool the milk, and
on the left hand side corner, you will see the very old pattern, old method of can coolers, which are being rejected and which are not used nowadays. And the other tools are now in the market, available in the market. They have capacity of cooling 2 cans in the morning, starting from 2 cans in the morning to 3, 4 cans in the morning, 6 cans in the morning, and 6 cans in the evening also. They can cool 2 cans in morning, 2 cans in evening. They can cool 4 can morning and evening. They can take care of 6 cans also. So up to 6 cans is up to 250 liters of milk per shift. So almost 500 liters tak aapka this equipment will be helpful for cooling and storing. And this is preferred by the dairy who are into the can collection system. जिनके पास tanker नहीं है, they collect the cans directly from the society, from the VLCC and carrying it to the central dairy. जो भी nearest थोड़ा रहता है, ज़्यादा टेम्परेचर का राइज होने का चांसेस नहीं रहता है, 8-10 डिग्री तक दूध पहुंच जाएगा साइड में. And initial investment is also low, and initial power requirement for these equipments are also low. So these are now preferred by the dairies. And the second set of cooling equipments that is available are quite popular. It is extensively used in dairy industry. Those are called bulk milk coolers. That starts from 500 liter and it goes up to the maximum capacity I have seen is 12,000 liters per day. Maybe very rare, but it is also available 12,000, 10,000. But generally, the capacities varies from 5,000 and widely used capacity is 2,000 liters per day. 2,000 liters per day. Let me make you clear one thing. Any dairy equipment actually is the capacity is for the entire day. It is called LPD, liters per day. 500 liters per day in the sense it can handle 60%, up to 60%, 300 liter in the morning and 200 liter in the evening. But basically, as per the Indian standard organization ISO, it is designed to cool 50% in the morning and 50% in the evening. 250 liters in the morning, 250 liters in the evening. So accordingly, same, but in can cooler, it is different. It is 100% in the morning and 100% in the evening. Then apart from this cooling and storing, we need some miscellaneous items, like we need some cans, which is preferably stainless steel or aluminum to handle the cans, because farmers तो लेके आएंगे 5 लीटर 10 लीटर में, so आपको तो कहीं तो एक जगह में पहले लेके कलेक्ट करना पड़ेगा. Then you will have to put it on the bulk cooler or can cooler, जो भी आपको equipments है. Second is milk pouring. आपका जितने भी closed tanks रहता है, like if you go beyond 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 and 12,000 liters of BMC, उसमें क्या होता है कि टैंक्स आर इन सर्कुलर टैंक्स, सो क्लोज टैंक्स रहता है, उसमें पंप फीडिंग सिस्टम आपको चाहिए. एंड छोटे टैंक्स में लाइक 500, 2,000 अप टू 2,000 पीपल यूज ग्रेविटी फीड सिस्टम. वो एक ग्रेविटी जैसे थोड़ा ऊपर रख के उसमें दूध डालते हैं और अपने आप टैंक में चला जाता है. अदरवाइज पंप फीडिंग सिस्टम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अनलोड द milk from the BMC to the road milk tanker. Then you need some hot water system, either electric geyser or solar water heater, depending upon the locality, depending upon the your investment on that part and running cost. Of course, solar में running cost थोड़ा कम रहता है, but उसमें भी थोड़ा बहुत issues है. But people prefer to go for solar. Many places में solar भी use हुआ है. And or you can go for electrical geysers because you need hot water to clean the equipments. Third is cleaning equipments like nylon brush, detergents. ये सब भी आपको चाहिए. Then fourth is safety devices, first aid box, light, fire extinguishers. ये सारी चीजें भी आपको वहां लगेगा, because कभी electrical items यूज कर रहे हो, कुछ भी कभी हो सकता है. So it is better to keep precautions on this. And furnitures like table, chair, almirahs, stationery. So these are small additional accessories, small things required for the smooth running of the BLCC. With that, we are coming to the end of the session. So now we'll be connected for 10, 15 minutes, 20 minutes. If you have any questions, you are free to ask.